સુરતમાં પણ સંદેશ ન્યૂઝના અહેવાલની અસર જોવા મળી। નવી સિવિલ હોસ્પિટલના બંધ એસી ચાલુ થઈ ગયા છે। ગત રોજ એર કન્ડિશનર બંધ પડ્યા હતા। પોસ્ટમોર્ટમ રૂમના એસી બંધ થઈ ગયા હતા। પોસ્ટમોર્ટમ રૂમની બહાર દુર્ગંધ આવી રહી હતી ત્યારે સંદેશ ન્યૂઝે અહેવાલ પ્રસારિત કર્યો હતો અને સંદેશ ન્યૂઝના અહેવાલ બાદ નવી સિવિલ હોસ્પિટલના બંધ એસી હવે ચાલુ કરવામાં આવ્યા છે। ગત રોજ એર કન્ડિશનર બંધ થઈ ગયા હતા। પોસ્ટમોર્ટમ રૂમના એસી બંધ થઈ જવાને કારણે દુર્ગંધ ફેલાઈ ગઈ હતી અને હવે જ્યારે સંદેશ ન્યૂઝે અહેવાલ પ્રસારિત કર્યો ત્યારબાદ તેની અસર જોવા મળી છે। જે દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે, ગઈકાલે કેટલાય લોકો ત્યાં મુશ્કેલીનો અનુભવ કરી રહ્યા હતા, દુર્ગંધનો અનુભવ કરી રહ્યા હતા અને હવે આજે અહેવાલ બાદ એસીનું રિપેરિંગ થઈ ગયું છે। આજે એસી રિપેર થઈને હવે એસી ચાલુ થઈ ગયા છે। આઝમ સાલે વધુ વિગતો સાથે જોડાયેલા છે। આઝમ, ગઈકાલે જે પ્રમાણે અહેવાલ પ્રસારિત કરવામાં આવ્યો હતો, પોસ્ટમોર્ટમ રૂમનું એસી બંધ થઈ ગયું હતું નવી સિવિલમાં, હવે અસર જોવા મળી છે। દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન માનવામાં આવે છે સુરતના મજુરા ગેટ સ્થિત આવેલી નવી સિવિલ હોસ્પિટલ અને એના જ પોસ્ટમોર્ટમ રૂમના એર કન્ડિશન મેન્ટેનન્સના અભાવે બંધ થઈ ગયા હતા। તેના કારણે ગતરોજ આ દ્રશ્યો જે સામે આવ્યા હતા, લોકો જે હતા તે જાતે સંદેશ ન્યૂઝ સાથે વાત કરતા જણાવી રહ્યા હતા કે અહીંયા ખૂબ દુર્ગંધ આવી રહી છે, ભારે દુર્ગંધ આવી રહી છે અને જે એસી હતા તે બંધ અવસ્થામાં અથવા તો તેમને મેન્ટેનન્સના અભાવે કુલિંગ ના આવતી હોવાના કારણોસર આ દુર્ગંધ આવતી હતી। સંદેશ ન્યૂઝના અહેવાલ બાદ તંત્ર જાગ્યું છે અને આજે જે મેન્ટેનન્સ છે તે કામગીરી કરવામાં આવી છે, તે ગેસ હતો તે પણ પૂરવામાં આવ્યો છે અને હવે રાબેતા મુજબ પોસ્ટમોર્ટમ રૂમના એર કન્ડિશન ચાલુ થઈ ગયા છે। જી ધન્યવાદ આઝમ આ માહિતી માટે। મધ્યપ્રદેશમાં 230 અને છત્તીસગઢમાં 70 બેઠકો પર મતદાન। એમપીમાં સવારે 9 વાગ્યા સુધી 11.95% મતદાન થયું, જ્યારે છત્તીસગઢમાં સવારે 9 વાગ્યા સુધી 5.71% મતદાન થયું। રાયપુરમાં સવારે 9 વાગ્યા સુધી 6.54%, રાયગઢમાં સવારે 9 વાગ્યા સુધી 5.13% મતદાન। છત્તીસગઢની 70 બેઠકો પર બીજા ચરણનું મતદાન ચાલી રહ્યું છે। 70 બેઠકો પર 958 ઉમેદવારોનું ભાવિ ઈવીએમમાં કેદ થશે। મધ્યપ્રદેશની 230 બેઠકો પર 2533 ઉમેદવારો મેદાને છે। મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે કર્યું મતદાન। બુધનીથી મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ चौहान છે उम्मीदवार। जो कोरोना काल में करके दिखाया है, 1.5 वर्ष कोरोना काल के बाद करके दिखाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है एक एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश में सशक्त बनाया है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, और पूर्ण रूप से बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार तो खास सीएम शिवराजसिंह चौहाने जीतનો વિશ્વાસ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો। છિંદવાડાથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કમલનાથે પણ મતદાન કર્યું અને દરમિયાન તેમણે કહ્યું હતું કે જલપાન બાદ પહેલા મતદાન। મધ્યપ્રદેશમાં સવારે 7 વાગ્યાથી મતદાનની શરૂઆત થઈ છે। પછી તે શિવરાજસિંહ ચૌહાણ હોય, કમલનાથ હોય, નરોત્તમ મિશ્રા હોય, કૈલાશ વિજયવર્ગીય હોય, તમામે મતદાન કર્યું હતું। પ્રહલાદ પટેલ અને જીતેન્દ્ર પટવારીએ પણ મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો। દિગ્ગજો આજે સવારથી જ મતદાન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા। ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે આજે મતદાનની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। મધ્યપ્રદેશમાં દિગ્ગજોએ મતદાન કર્યું। શિવરાજસિંહ ચૌહાણે જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। મધ્યપ્રદેશ એવું રાજ્ય કે જે દર વખતે સરકાર બદલતું હોય છે, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હાલમાં છે અને શિવરાજસિંહ ચૌહાણે ફરીથી જ ભાજપની સરકાર આવશે તેવો આશાવાદ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો। તો આ તરફ કોંગ્રેસે પણ એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું છે। નરોત્તમ મિશ્રા પણ પહોંચ્યા હતા અને તેમણે આક્ષેપ પણ કર્યા હતા અને સાથે વિકાસ ના જે કહેવાય વિકાસ સાથે તેઓ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો। ત્યારે મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડાથી संदेश न्यूज़ना चैनल हेड प्रशांत नेमा लाइव हमारे साथ ही जुड़ाई गया है। प्रशांत जी, क्या माहौल है छिंदवाड़ा में जब आज मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से? देखिए, सुबह करीब 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है छिंदवाड़ा में। पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जो 70 सीटें बची हुई विधानसभा की, वहाँ पे भी वोटिंग हुई है। तो कुल मिला के 300 सीटों पर मतदान हो रहा है और सुबह से ही इस वक्त करीब 11:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है। लेकिन सुबह के वक्त 7 बजे से लेकर 11 बजे से जिस तरीके से मतदान केंद्रों में भीड़ उमड़ी थी, लोगों की काफी भीड़ की कतारें भी देखी गई थी। लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा काम का समय हुआ है, लेकिन आज छुट्टी का दिन भी है, थोड़ी देर बाद फिर से मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ी थी। लेकिन अभी का जो वोटिंग परसेंट यदि हम देखें सुबह 7 बजे से अभी तक का,
तो वो ओवरऑल जो मध्य प्रदेश का वोटिंग परसेंट है वो करीब 30% के आसपास की वोटिंग है, जो दोपहर में थोड़ी सी धीमी हो सकती है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से गति पकड़ेगी, क्योंकि मतदान का जो समय यहाँ पे रखा गया है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का रखा गया है। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि मुकाबला इस बार जो है काफी रोचक है इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। जिस तरीके से लगातार हमने देखा है कि बीच बीच में जिस तरीके से सर्वे भी आए हैं और कई चीजें आई हैं, तो बहुत टसल वाला मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है। जहां तक मतदाताओं का सवाल है, काफी ऊहापोह में है। हमने सुबह से लेकर अभी तक कई सारे मतदाताओं से बात की है, कोई भी खुले तौर पे कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिला के भी हम ये ऐसा कहें कि मुकाबले को मतदाताओं ने भी काफी रोचक बना दिया है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उम्मीदवार खड़े किए, जहां छिंदवाड़ा की यदि मैं बात करूं तो छिंदवाड़ा में ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के कमलनाथ। उन्होंने सुबह ही अपना वोट डाल दिया था, साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपील की थी कि वोटिंग करने के लिए आगे आए। उनके सामने जो खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है बट्टी साहू, वो भी काफी उन्होंने मेहनत की है। गांव-गांव में जाकर के उन्होंने जो है अच्छा एक कड़ा मुकाबला जो है वो बना दिया है। तो छिंदवाड़ा का मुकाबला भी, जहां तक यदि हम कहें कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं कमलनाथ, उनके और भारतीय जनता पार्टी के जो है बंटी साहू, दोनों के बीच में भी एक मुकाबला, हमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत आसान होने वाला है। ये मुकाबला भी काफी तगड़ा होने की उम्मीद है। दूसरी बात, छिंदवाड़ा से थोड़ी सी दूर नरसिंहपुर है, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले उनकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें एक शख्स की जो है वो दिक्कत भी हुई थी, और उस एक्सीडेंट के बाद से थोड़ी सी मतदाताओं के मन में भी काफी रोष जैसा हम कहें तो वो देखा गया था। पर जो नरसिंहपुर का इलाका है वहाँ पे प्रहलाद पटेल जो पे चुनाव लड़ रहे हैं। नरसिंहपुर से यदि हम थोड़ा सा मुरैना की तरफ जाएं तो जहाँ दिमनी एक विधानसभा सीट है, वहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तीन केंद्रीय मंत्री, प्रहलाद पटेल यदि हम कहें, फग्गन सिंह कुलस्ते कहें, नरेंद्र सिंह तोमर कहें, तीनों के बीच में जो सीटें हैं वहाँ पे भी आज वोटिंग हो रही है। कुछ एक हल्की फुल्की शुरुआत में कुछ झड़पें भी वहाँ पे हुई हैं, हालांकि उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार जो वोटिंग का परसेंट रहा है, मतदाता चूंकि जागरूक है यहाँ पर, वो ये जानता है कि उनके वोट की कीमत क्या है, और उनका जो वोट है वो अगले 5 साल के लिए जो है उन्हें एक नई सरकार देने वाला है, नया नेता देने वाला है, नया मुख्यमंत्री देने वाला है। तो अपने वोट की कीमत को वहाँ समझते हैं, और इसीलिए वोटिंग का परसेंट जो है वो पिछले कई विधानसभा चुनावों से काफी ज्यादा रहता हुआ आया है, 65%, 70%। और इस बार उम्मीद ऐसी की जा रही है कि ये वोटिंग का परसेंट जो है वो 75-80 के बीच में भी रह सकता है। यदि हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भी सुबह सुबह एक नक्सल अटैक हुआ है, एलईडी का ब्लास्ट हुआ है, पर 70 सीटों पर वहां पे मतदान है। बीच में मुख्यमंत्री जो भूपेश पटेल है, उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। ईडी का जो 508 करोड़ रुपए का मामला था वो भी सामने आया था। वो तमाम चीजें हैं। चुनाव जो है काफी रोचक हो चुका है। कुल मिला के करूं, मतदान की जहां तक बात है तो मतदाताओं के बीच में काफी उत्साह है सुबह से ही। खासतौर से यदि हम ग्रामीण इलाकों का देखें तो इस समय मैं एक ग्रामीण अंचल में खड़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे सुबह से ही जो है यहाँ पे लोग खेती किसानी पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो सुबह से ही लोग अपना खेत में गए, उसके 7 बजे के आसपास जो है उन्होंने पहले वोट डाला यहाँ पर आकर, उसके बाद अपने खेतों में काम करने के लिए गए। अब वहां से जब वो लौटेंगे 12 से 1 बजे के बीच में, तो एक बार हमें जो है दोपहर में यहाँ पे मतदान केंद्रों पे काफी भीड़ देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर यदि हम ये कहें कि इस बार का मुकाबला जो है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, दोनों में काफी रोचक स्थिति है। मतदाताओं के बीच में काफी उत्साह है, और वोटिंग का परसेंटेज जहां तक अभी तक का जो स्थिति है उसको देखते हुए लग रहा है कि काफी अच्छी वोटिंग यहाँ पे हो सकती है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।